الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ آپ مومنوں کو فرما دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان چیزوں سے جس کو لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ، اس لیے کہ نظر سے زینہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور آخری امر ہے فرجین کی حفاظت۔ ان دونوں کے درمیان جتنے معاملات ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، چھونا، بوس و کنار کرنا، تمام کی تمام چیزیں ممنوع ہے۔ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی بتلا دی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور اپنے فرجوں کی حفاظت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تم اپنی فرض کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اندر خوف ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں کو بھی بتلا دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی فرجوں کی حفاظت کرے۔ چونکہ معاملہ اہم تھا اور زینہ کے اوپر کلی طور پر روک لگانی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے مردوں کو مخاطب کیا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور فرجوں کی حفاظت کرو، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی بتلایا کہ تم بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنے فرجوں کی حفاظت کرو۔ آیا عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک دوسری بیوی حضرت میمونہ یہ موجود تھی۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ آنکھوں سے نابینا تھے، اندھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میمونہ اور ام سلمہ تم دونوں پردہ کر لو، عبداللہ آ رہے ہیں۔ ان دونوں بیویوں نے ہماری ماؤں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، وہ تو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی اندھیاں ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو، اس لیے تم پردہ کرو۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مردوں کو دیکھنے سے پردہ کرے۔ البتہ ایک دوسری روایت سے کچھ تخفیف معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریفہ میں تشریف فرما تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ بالکل قریب تھی۔ تو اس مسجد کے اندر حبشی لوگ کرتب بتلا رہے تھے، جہاد کے اندر جو دعو کرتے ہیں وہ بتلا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ دیا، تو آپ کے اس ہاتھ کے اوپر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گردن رکھ کر کے اپنی گردن رکھ کر کے جو حبشی حضرات
करतब बतला रहे थे, इन करतबों को देखा। अगर औरत के लिए मर्द को देखना जायज़ न होता तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इन करतब को न देखती। इस बिना पर हमारे फुक़हा ने फैसला किया है कि औरत के अंदर अगर फितने का खौफ और शहवत की निगाह न हो तो मर्दों को देखना जायज़ है, जैसे कि माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा। लेकिन अगर शहवत का खौफ है, फितने का खौफ है, तो ऐसी सूरत में एहतियात ये है कि औरतें भी मर्दों को न देखें, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा और मैमूना रदी अल्लाह अन्हुमा को रोका। तो दोनों तरह की रिवायतें अलग अलग हालतों के ऊपर मबनी है कि औरतों को अगर अपने ऊपर अमन है तो ऐसी सूरत में वो मर्दों को देख सकती है पर्दे में रह करके। लेकिन अगर इनको भी अमन नहीं है बल्कि निगाह में खौफ है शहवत का, तो ऐसी सूरत में औरतें भी मर्दों को न देखा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया औरतें भी नज़रें नीची रखे और अपनी फ़र्ज़ों की हिफाजत करे। और वला यबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा वल्यदरिबन बिखुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। अगले दो अहकाम बतलाए कि औरतें अपनी जीनत का इजहार न करे मगर जितना भी ज़रूर ज़ाहिर हो जाता है, और औरतें अपनी ओढ़नियों को अपने गरेबानों के ऊपर लगा दे। तो यहाँ पर दो हुक्म और बयान फरमाए कि अपनी जीनत की जगहें जाहिर न करे। औरत पूरी की पूरी जीनत की जगह है। औरत हाथ के अंदर पाजेब कंगन पहनती है, पाँव के अंदर पाजेब पहनती है, आज के ज़माने में हाथ के अंदर लुसिया वगैरह पहनती है, आँखों के अंदर सुरमा और काजल लगाती है, और औरतें अपनी नाक के ऊपर भी नथनी लगाती है, कान के अंदर भी बाली लगाती है, अपनी गर्दन के ऊपर भी वो हार पहनती है। तो औरतें पूरी की पूरी जीनत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि इस जीनत का इजहार तुम पराये मर्दों के सामने मत करो मगर जितना के जाहिर होता है। बात चीज़ें जाहिर होती ही है तो ये उसकी मजबूरी है। बात चीज़ें जाहिर होती है औरत के एतबार से, और बात चीज़ें जाहिर होती है देखने वाले के एतबार से। औरत के एतबार से जाहिर होने वाली चीज़ों की दो तफसीरें हैं। एक तफसीर अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई, और एक तफसीर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरत की जीनत की जो चीज़ जाहिर होती है वो उसका ऊपर का कपड़ा, कि औरत घर के अंदर अपना कमीज पहनती है, इजार पहनती है, ओढ़नी पहनती है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगी तो ये जो उसका लिबास है ये भी जीनत है। इस जीनत को वो ढांकेगी एक बड़ी चादर के जरिया, जिसको तुम या तो बुर्का कह लो या बड़ी चादर कह लो। अब इस चादर को छुपाने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यही चादर तो औरत के कपड़ों को भी छुपा रही है, तो ये चादर तो जाहिर होगी। तो
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہونے والی چیز یہ اوپر کی چادر ہے. عورت اپنے آنکھ کا ایک حصہ ظاہر کرے کہ جس سے وہ دیکھ سکے، یا جالی والا پردہ پہنے جس کی بنا پر دونوں آنکھوں سے وہ دیکھ سکے، بس اتنا ہی ظاہر کرنا جائز ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. عورت گھر سے جب باہر نکلے گی تو اس کو کام کاج ہوگا، کہیں تو وہ خرید و فروخت کرے گی، کبھی کسی دکاندار سے کوئی لین دین کرے گی، کبھی مردوں کے ساتھ بھی کچھ لین دین کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اس کا چہرہ اور اس کی دونوں ہتھیلیاں یہ ظاہر ہوگی. تو ان دونوں کو ظاہر کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہے. ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ تو فرما رہے ہیں کہ فقط بڑی چادر ہی ظاہر ہو، چہرہ وغیرہ ظاہر کرنا عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. لیکن دوسرے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گنجائش دی ہے کہ عورت کو ضرورت پڑے گی، جب وہ باہر جائے گی تو دکاندار اس کو پہچانے بغیر سودا سلف کیسے دے گا، اس کو ادھار کیسے دے گا. اس لیے چہرہ تو اس کو بتلانا پڑے گا، ورنہ دکاندار بھی اسے کچھ نہیں دے گا اور کوئی اس کے ساتھ لین دین بھی نہیں کرے گا. اور لین دین کرنے کے لیے ہاتھوں کو ظاہر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور فقہا نے بتلایا کہ جیسے ہتھیلیوں تک یہاں تک ہاتھ ظاہر کرنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے ٹخنوں تک پاؤں ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو ان تین اعضاء کو ظاہر کرنے کی اجازت ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق. لیکن یہ تو عورتوں کے لیے گنجائش ہے، لیکن آیا مردوں کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے رد المحتار کے اندر لکھا ہے کہ مرد اگر شہوت سے امن رکھتا ہو اور اس کی نگاہیں پاک ہو اور وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی فتنہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس مرد کے لیے عورت کے چہرے اور ہتھیلی کو دیکھنے کی گنجائش ہے. اور اگر مرد کو فتنے کا خوف ہے اور اس کی نظر شہوت والی ہے تو ایسی صورت میں اس مرد کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنا حرام ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں عورت کو چہرہ کھولنے کی تو گنجائش ملے گی، لیکن مرد کو دیکھنے کی گنجائش اپنے اوپر جب قابو ہو تو ایسی صورت میں مردوں کو دیکھنے کی گنجائش ہے، ورنہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو الا ما ظہر منہا، اس کے یہ دو مطلب ہوئے کہ ابن مسعود بتلاتے ہیں کہ اوپر کی چادر ہی ظاہر کرے، نہ چہرہ کھولنا جائز ہے اور نہ ہتھیلیاں کھولنا جائز ہے، نہ پاؤں کھولنا جائز ہے. یہ ابن مسعود کی تفسیر ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک کھولنے کی گنجائش ہے. لیکن مردوں کو دیکھنا
अपने अमन के ऊपर जायज है और फितना और शहवत हो तो ऐसी सूरत के अंदर जायज नहीं है। चूँकि आज का ज़माना फितना व फसाद का है, इसलिए एहतियात तो उसी के अंदर रखी जाएगी कि अजनबी औरतों को न देखा जाए। और दूसरी ताकीद ये फरमाई कि औरतें अपने ओढ़नी के पल्लू को अपनी सीने के ऊपर डाल ले। पहले ज़माने के अंदर औरतें जब ओढ़नी ओढ़ती थी तो इसका जो पल्लू होता था इसको पीछे डाल देती थी। इसकी बिना पर सीने का उभार नजर आता था और औरत झाड़ू देने या किसी काम के लिए झुकती थी तो ऐसी सूरत में इसके सीने का उभार खुले तौर पर नजर आता था। इस खराबी को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शरीफ औरतों को ये हुक्म दिया कि जब तुम ओढ़नी ओढ़ो तो इसके दोनों पल्लू दाहना बाईं जानिब डाल लो और बायां दाईं जानिब डाल लो तो सीने का उभार ये छुप जाएगा और सीने का उभार नजर नहीं आएगा और कोई बदनजर आदमी तुम्हारे सीने की जानिब देखना चाहेगा तो देख नहीं सकेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल करके हुक्म बयान किया कि जब तुम ओढ़नी के दोनों पल्लू डालो तो ऐसी सूरतों में अपने सीने के उभार को भी तुम छुपा लो। भले वो कमीज के अंदर तो छुपे हुए हैं लेकिन वहां पर थोड़ा सा गरेबान खुला हुआ है और झुकने की बिना पर सीने का कुछ हिस्सा नजर आने का इम्कान है तो शरीयत ने इसके ऊपर भी रोक लगा दी और फरमाया कि तुम अपनी ओढ़नियों को बराबर इस तरीके पर डालो कि तुम्हारे सीने का उभार मालूम न हो। अल्लाह तबारक व तआला इतनी ज्यादा अपनी बंदियों की और हमारी माँ और बहनों की हिफाजत करना चाहता है, लेकिन आज मुसलमानों ने औरतों को खुलेआम छोड़ दिया। न वो सर का पर्दा करती है न चेहरे का पर्दा करती है और खुलेआम सब चीजें खोल करके चल रही है और आज इसकी बिना पर फितना व फसाद फैल रहा है। और हमारी कॉलेज के अंदर जो बहनें जाती है वो भी बहुत ज्यादा छुटछाट लेती है और उसके अंदर गैर मर्दों के साथ इख्तिलात हो जाता है। बोलने से शुरुआत होती है और फिर आपस में हम कलाम होते हैं और हिजाब आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, शर्म घटने लगती है। और गैर मर्दों के साथ भी आज तुम रोजाना अखबार उठा करके देखो तो कई फोटो ऐसे आएंगे जिससे हम खून के आंसू रोने लगते हैं कि कई हमारी माँ बहनें हिंदू लड़कों के साथ भाग करके चली जाती है। ये हमारी एहतियात न करने की बिना पर है। हम अपनी माँ बहनों को स्कूल के अंदर पढ़ाना है तो जरूर पढ़ाए, लेकिन इसके पर्दे के ऊपर हम तवज्जो दे, इसके मोबाइल के ऊपर हम तवज्जो दे। आज मोबाइल के रास्ते से दुश्मन हमारे घरों के अंदर घुस गया है और हमारी माँ बहनों को उसने बेहिजाब कर दिया है, माँ बहनों को बेशर्म बना दिया है और खुले आम बेहिजाबाना ये हिंदू लड़कों के साथ भी भाग जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए हम में से हर माँ बाप, हर भाई बहन
अपनी पढ़ने वाली माँ बहनों के ऊपर बराबर तवज्जो रखे, इनको या तो मोबाइल ना दे, या अगर मोबाइल दिया है तो ये बहुत ही बड़ा फितना है। इसके बिना पर ये औरतें हमारे काबू से निकल जाती है, बल्कि जवान हमारे जो बेटे हैं वो भी काबू से निकल जाते हैं और अपने बिस्तरों के अंदर क्या क्या मोबाइल के अंदर देखते हैं कि हम भी शर्मा जाए। तो कभी हम चेक करें अपने बेटों के मोबाइल को भी, अपने बेटियों के मोबाइल को भी, और इस रास्ते से जो फितने फैल रहे हैं और मोबाइल के जरिया जो शरीफ घरानों के अंदर भी शैतान दाखिल हो चुका है, इसके ऊपर हम कदगन लगाए और हम हमारी माँ बहनों के साथ जरा खुलकर के मिले, इनके साथ जरा दोस्ताना ताल्लुक रखे और इनको इसकी इज्जत के बारे में समझाए कि तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम तो हमारी नामोस हो, तुम हमारी आंखों को हम ऊंचा करके चल सके, तुम हमारी ऐसी इज्जत हो, तुम अगर हमारी नजरें झुका दोगी तो हम किस तरीके से समाज के अंदर चल सकते हैं। इसलिए तुम तो हमारी मुहाफिज हो, तुम ही हमारी इज्जत हो, तुमने अगर अपनी इज्जत की हिफाजत रखी तो हम तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माँ बाप आंख ऊंची करके चल सकेंगे, वरना तुम हमारी आंखों को भी झुका दोगे। इस तरीके से दोस्ताना माहौल के अंदर हम अपनी माँ बहनों को समझाए, हम अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को समझाए, और अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले ये हुक्म जाहिर फरमाए कि अपनी नजरों को तुम नीची करो, अपनी फर्जों की तुम हिफाजत करो और अपनी जीनत की जगहों को अजनबियों के सामने तुम जाहिर मत करो, मगर जो कुछ के जाहिर हो रहा है इसके अंदर तुम मजबूर हो। इसलिए तुम चेहरा और हथेलियां और तखनों तक पांव के अंदर मजबूर हो, बकिया के अंदर तुम मजबूर नहीं हो। इसलिए इनको तुम छुपाए रखो और अपने ओढ़नी के पल्लू को दोनों जानिब से तुम अपने सीनों के ऊपर लगाए रखो। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाई बुउलतिहिन्ना, और औरतें अपनी जीनत जाहिर न करें मगर अपने शौहरों के सामने, अपने बाप के सामने, अपने शौहरों के बाप के सामने, अपने बेटों के सामने, अपने शौहरों के बेटों के सामने, अपने भाइयों और भतीजों के सामने और अपने भांजों के सामने और अपनी औरतों के सामने और अपनी बांदियों के सामने और उन लोगों के सामने जो मर्दों की हाजत नहीं रखते हैं, इनके सामने, और उन बच्चों के सामने जो औरतों के राज के ऊपर वाकिफ नहीं हुए। और तुम अपने पाँव को जमीन से इतने जोर से मत मारो कि तुम्हारे जेवर लोगों के सामने बजने लगे, और तुम तमाम के तमाम अल्लाह के सामने तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम कामयाबी पाओ। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि तुम्हें जीनत जाहिर करने की जो इजाज़त है वो 12 लोगों के सामने तुम्हें इजाज़त है, इसलिए कि इन 12 लोगों के सामने जीनत जाहिर करने में तुम्हें कोई हर्ज नहीं है। एक तो तुम्हारा शौहर है, इनके सामने तो कोई पर्दा ही नहीं है, इल्ला ये कि खास 2 अज़वा को
छुपाए मियाँ बीवी भी एक दूसरे से, तो ये अच्छी बात है। माइसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मा रअयतु मिन्हु वला रआ मिन्नी, मैंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मस्तूरा को नहीं देखा और न आपने मेरे आज़ाए मस्तूरा को देखा। वैसे शरअन इजाज़त है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक हया की बात है कि मर्द और औरत ये दोनों अपने इन दोनों आज़ा को न देखे, तो ये एक शरीफाना बात है, ये एक करीमाना बात है। हालांकि उसके देखने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी है। तो सबसे पहले तो शौहर का इस्तिस्ना किया और उसके बाद ऐसे रिश्तेदारों का इस्तिस्ना किया जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती तौर पर ये फितरत रखी है कि ये इन औरतों की हिफाजत करेंगे और ये कभी भी इनकी जानिब गलत निगाह से नहीं देखेंगे। जैसे कि बाप है, बाप कभी भी अपनी बेटी को गलत निगाह से नहीं देखता और बाप के अंदर ये जज्बा है कि वो अपनी बेटी की हिफाजत करे। इसी तरीके से शौहर के अंदर जज्बा है कि अपनी बीवी की हिफाजत करे। इसी तरीके से भाई के अंदर जज्बा है कि वो अपनी बहन की हिफाजत करे। भतीजे और भांजों के अंदर ये जज्बा है कि वो अपनी फूफियों की और अपनी खालाओं की हिफाजत करे। और शौहर के बाप के अंदर भी ये जज्बा है कि वो अपने बेटे की बीवियों की हिफाजत करे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को इनके सामने अगर वो पर्दा न करे तो इसकी इजाजत दी है। सतर खोलना तो किसी के सामने जायज नहीं है। सतर तो न मर्द मर्द के सामने खोले, न औरत औरत के सामने खोले। और सतर नाफ के नीचे से लेकर के घुटने के नीचे तक, नाफ नजर आए तो हरज नहीं, लेकिन नाफ के नीचे से हमारा कोई हिस्सा न कोई मर्द देखे न कोई औरत देखे। इसी तरीके से औरत को भी एक औरत नाप से लेकर के घुटनों तक बिल्कुल न देखे। और इसी तरीके से उसके जो महरम है वो भी नाप से लेकर के घुटनों तक और उसके पेट को और उसकी पुष्ट को न देखे। महरम के लिए इतनी इजाजत है कि वो इसके सीने को देख सकता है, क्योंकि कभी बहन को जरूरत होती है कि बच्चे को दूध पिलाए, माँ को जरूरत होती है दूध पिलाए, तो अपने बच्चे के सामने या अपने भाई भतीजों या भांजों के सामने कभी उनको सीना खोलने की जरूरत पड़ती है, तो सीना तो सतर के अंदर नहीं है। इसलिए अगर भाई बहन के सामने सीना खुले तो इसमें हरज नहीं है, लेकिन पेट नजर न आना चाहिए और पुष्ट नजर न आनी चाहिए। और हर एक का जो सतर है नाप से लेकर के घुटनों तक वो न देखे। और जो महरम है वो उसके साथ पेट और पुष्ट को न देखे। बस महरम को इजाजत मिली पेट और पुष्ट के अलावा घुटनों के नीचे पिंडलियों का हिस्सा अगर उसने अपनी बहन का, भांजी का, भतीजी का देखा तो इसमें हरज नहीं है। इसलिए कि ये मर्द फितरी तौर पर इनकी हिफाजत करते हैं और कभी बदनजरी इनके ऊपर नहीं करते, इसलिए इनको इजाजत मिली कि घुटनों के नीचे भी तुम देख सकते हो। और इसी तरीके से हाथ का हिस्सा यहाँ तक, बाजू तक भी तुम देख सकते हो। जो महरम है, जो कभी भी निकाह नहीं कर सकते, इनको महरम कहा जाता है। भाई कभी निकाह नहीं कर सकता, भतीजा और भांजा भी कभी निकाह नहीं कर सकता, चचा और
चचा और जो मामू है वो भी कभी अपनी भतीजी और अपनी भांजी से निकाह नहीं कर सकते। तो जिनके साथ शरीयत ने हमेशा के लिए निकाह हराम ठहराया है, ये आपस के अंदर महारिम कहे जाते हैं और इनसे औरत को कोई खतरा नहीं होता, बल्कि फितरी और कुदरती तौर पर ये औरतों की हिफाजत करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि अपनी जीनतों को जाहिर ना करे, मगर एक तो अपने शौहरों के सामने और दूसरे अपने महरमों के सामने। शौहर महरम तो नहीं है, लेकिन निकाह की बिना पर उसको गुंजाइश मिल गई और उसको सबसे ज्यादा गुंजाइश मिली। और उसके अलावा जो दीगर रिश्तेदार है, इनको हिफाजत की बिना पर गुंजाइश मिली। तो सबसे पहले बतलाया कि अपने बाप से औरत को पर्दा नहीं है, सतर छुपाना है नाप से लेकर के घुटनों तक और पेट और पुष्ट को, लेकिन इसके अलावा जो है इसका पर्दा नहीं है, ये कहा जाता है। और अजनबी औरतों के लिए तो नाप से नीचे भी और घुटनों के नीचे भी पर्दा है, बस उसका तो फकत चेहरा, हथेलियां और दोनों पांव टखनों तक इतनी ही गुंजाइश है गैर महरम औरतों के अंदर। हाँ, महरम औरतों के अंदर हमें इतनी गुंजाइश मिली है। तो एक तो इसके बाप और उसके शौहरों के बाप, जो उसके शौहर है, इसके बाप भी तो उसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि शौहर का बाप ये बीवी का बाप समझा जाता है और बीवी का बाप शौहर का बाप समझा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के अंदर इतनी बड़ी रिश्तेदारी पैदा कर दी कि एक दूसरे के माँ बाप, शौहर के माँ बाप बीवी के माँ बाप के दर्जे में हो गए और बीवी के माँ बाप शौहर के माँ बाप के दर्जे में हो गए। शौहर के माँ बाप कभी भी इस बीवी से शादी नहीं कर सकते और बीवी के माँ बाप कभी भी इस शौहर की औलाद से शादी नहीं कर सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के गोया के माँ बाप बन गए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि और शौहरों के जो बाप है वो भी इनसे भी अगर पर्दा न करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अपने बेटों से पर्दा न करे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, चाहे बेटा खुद अपने पेट से हो या अपने शौहर का किसी और बीवी से हो। क्योंकि अपनी बीवी का जो भी लड़का होगा वो लड़का अपनी सगी माँ की जैसे हिफाजत करता है, इसी तरीके से बाप की तमाम बीवियों को वो माँ समझेगा और इनकी भी हिफाजत करेगा। इसलिए अपने बेटों से, चाहे अपने पेट का बेटा हो या अपने शौहरों का बेटा हो, इनसे भी तुम्हारा हिजाब नहीं है। और भी बकिया चंद मुहर्रमात है और दूसरे भी है, इंशाअल्लाह इसको आइंदा कल बयान करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें।